everyone. Today is our second period of this chapter history, chapter 1 history, when, where and how. So children, in last period I end our last topic is nationalism. So I repeat this topic once again. Please open your book at page 2 and keep your pencil in your hand. Now read out the para, children. Nationalism is identification. What is our identity? That we are Indian. Okay. Nationalism is identification with one's own nation. We are Indian. है ना? We are living in India and we are Indian. That is our identification. Yes. And support its interest. We are supported our country interest. क्या फ़ायदा है हमारी कंट्री के लिए, हम ये सोचेंगे ना. वी आर इंडियन, सो वी आर थिंकिंग अबाउट आवर कंट्री इंटरेस्ट. इट इमर्ज इन द 19th century इन यूरोप. ये थिंकिंग कहाँ से इमर्ज हुई, कब हुई? इन 19th century इन यूरोप में हुई. एंड इन आर कंट्री व्हेन इट इमर्ज, इन आर कंट्री इट्स इमर्ज व्हेन द पीपल ऑफ इंडिया थिंक दैट the East India Company misused its power. Okay, so this thinking can emerge. राष्ट्रवादी की भावना, हमारा भारत है, हमारे भारत में ब्रिटिश क्यों आए, इनको यहाँ से निकालो, ये अपना पावर का मिसयूज कर रहे हैं. तो दिस थिंकिंग विल इमर्ज व्हेन वी रियलाइज दैट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैन मिसयूज इट्स पावर. हैव यू अंडरस्टूड दिस पैरा, चिल्ड्रन? Okay, now let's move to the further topic. Next topic, sources of the modern period. Sources of the modern period. Sources of the modern period. Sources means what? Material of the modern period. यू नो, मॉडर्न पीरियड के बारे में हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसके सोर्सेस कहाँ से पता चले, ये बना कैसे? उस समय तो हम थे नहीं, है ना. तो ये मॉडर्न पीरियड के बारे में जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं या आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, तो वेयर वी गेट द मटेरियल. ओके, हमें मटेरियल कहाँ से मिला, है ना. तो let's read out this para. Sources of the modern period. Keep your finger on this para, children. The modern period in the Indian history start from the 18th century. When it is start, children? From the 18th century, modern period. Unlike the preceding eras, there are a vast fund of sources available to reconstruct the modern period of the Indian history. Vast fund of sources, vast fund मतलब बहुत सारे materials we found to construct modern history, modern period. Okay, see, to reconstruct the modern period of the India. So what they are, what the material we get to reconstruct the modern period, to construct the modern period, let's see, such as गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स. गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जब हम उनको खोल के पढ़ेंगे तो वी नो दैट विच ईयर व्हाट इवेंट्स विल हैड हैपन, है ना. क्या हुआ था, क्या किया था राजा ने, है ना, कितने राज जीते थे, लाइक दैट. गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, आर्किटेक्चर्स, accounts of travelers means those who are coming, travelers जो होते हैं ना, बाहर से जो लोग आते हैं, they are writing some books, some magazine for our country, for any place, है ना, that's things also the sources of modern period. Travelers of books, newspaper and magazine. Newspapers as you all know, कई सालों के न्यूज़पेपर हमें मिलते हैं, है ना. अगर हम चाहे कि 1999 का कोई न्यूज़पेपर हमें मिले तो हमें मिल जाएगा, हमें उस प्लेस में जाना पड़ेगा जहाँ ये इतने सारे न्यूज़पेपर की अवेलेबिलिटी हो. क्लियर? तो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑल्सो it is collected, and when we read out these things, newspaper, magazines, government record and travelers books, so we get so many things which we reconstruct the modern period,
है ना, कई सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी बुक से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से। उस थिंग्स को हम रिकॉर्ड बना करके रखेंगे और वो कौन से रिकॉर्ड में आएगी, मॉडर्न पीरियड्स के रिकॉर्ड में आएगी, जिसको हम पढ़ के अपने नॉलेज में ला सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? सोर्सेस ऑफ मॉडर्न पीरियड का मतलब समझ में आया कि कहाँ से ये थिंग्स आती है। तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड से आती है, न्यूज़पेपर से आती है, मैगजीन से आती है, ट्रेवलर्स बुक से आती है, लाइक दैट। ये सब को सुनकर हमने क्या रिकंस्ट्रक्ट किया, मॉडर्न पीरियड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज ऑफिशियल रिकॉर्ड of the official record of the British administration. So official record, ब्रिटिश के ज़माने में ऑफिशियल रिकॉर्ड कैसा होता था, क्या करते थे? ओके, लेट्स रीड आउट दिस पैरा। द ब्रिटिश रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। ब्रिटिश को बहुत अच्छे से पता था द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। एंड मेटिकुलसली मीन्स ग्रेट अटेंशन। उन्होंने काफ़ी ग्रेट अटेंशन दिया इस बात पर कि डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखना चाहिए। क्लियर? मेंटेन ऑफिशियल रिकॉर्ड फॉर एवरी एक्शन टेकिंग प्लेस अंडर देयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अंडर देयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, देयरफॉर देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑफिशियल डाटा फॉर द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया। सो बहुत सारे डाटास कलेक्ट हुए ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड एंड ब्रिटिश ऑफिशियल प्रिजर्व दैम वेरी वेरी केयरफुली। बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखते थे जो भी डाटा। अब आप बोलोगे मैडम डाटा मतलब क्या? डाटा मीन्स कौन से राज्य में उन्होंने कब्जा किया, क्या क्या किया, विच ईयर में किया, ओके, किस राजा को हराया, लाइक दैट। ऑल द ऑफिशियल थिंग्स आर केप्ट and preserved very carefully during British period. Now also, let's see. The British ensured that all official paperwork was carefully documented and preserved. British क्या चाहते थे कि जो भी ऑफिशियल पेपर है, किसकी ज़मीन किसके नाम पर है, कौन सी जगह पर ब्रिटिश का कब्जा था, है ना, लाइक दैट। ऑफिशियल पेपर वर्क वॉज केयरफुली डॉक्यूमेंटेड, उसकी डॉक्यूमेंट बना के रखनी चाहिए। एंड प्रिजर्व, और अच्छे से प्रिजर्व करके रखना चाहिए, अच्छे से संभाल के रखना चाहिए ताकि वो खराब ना हो। प्रिजर्व। ओके, नेक्स्ट पैरा सी, पेज 3। अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ दिस ऑफिशियल रिकॉर्ड, large volume of these official records of the British period can be found at National Archives of India based in New Delhi. न्यू दिल्ली में आप जाओगे तो नेशनल आर्काइव्स में सारे डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड के अभी तक प्रिजर्व किए गए हैं, रखे गए हैं। और ये जगह कौन सी है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स में डॉक्यूमेंट प्रिजर्व किए गए हैं, रखे गए हैं ब्रिटिश पीरियड के ज़माने से। क्लियर? नेक्स्ट पैरा। Although the official record of the British administration proved to be a valuable source of reconstructing the history of modern period in India, अब जो भी preserved किए गए हैं, है ना, all the document which are preserved in New Delhi, that is helpful to reconstruct modern period. Yes, वो हेल्पफुल हुए कि नहीं? उनको हम खोल के देखेंगे कौन सा राजा का राज था, ये क्या किया, कब किया, लाइक दैट, है ना। दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू रिकंस्ट्रक्ट अवर, दैट मीन्स कंस्ट्रक्ट अवर मॉडर्न पीरियड। यस, इट ऑल्सो हैज़ इट्स लिमिटेशन, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस है। नाउ यू से दैट मैम इसके क्या लिमिटेशन हो सकते हैं? सपोज आई एम ब्रिटिश रूलर, तो मैं अपने जो भी रिकॉर्ड्स बनाऊंगी अपने तरीके से बनाऊंगी ना, जो मुझे सूट करता हो, जो लगता हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, लाइक दैट।
मैं बहुत अच्छा किंग थी, बहुत पावरफुल थी, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, लाइक दैट। तो मैं डॉक्यूमेंट्स खुद के हिसाब से बनाऊंगी, यस बनाऊंगी कि नहीं, दूसरों के हिसाब से थोड़ी ना बनाऊंगी। आई विल मेक डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, जो मुझे अच्छा लगता है वैसे बनाऊंगी, लाइक दैट। अगेन आई रिपीट दिस लाइन, पेज 3 3rd पैरा, ओके। सी it is also its limitation. One must remember that these official records have been written from a British perspective. ये किसने लिखे हैं? ब्रिटिश पर्सन ने लिखे हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल ने लिखे होंगे, क्लियर। Thus there may have been a possibility that a British overlook certain issue. कई सारे इशू को वो ओवरलुक कर देते होंगे, लाइक दैट। ये नहीं लिखना है, इससे पता चलता है कि लोगों ने हमारे खिलाफ बगावत की थी, लाइक दैट। ये सारी चीज़ों को वो डिलीट करके अपनी पावरफुल, अपनी स्ट्रेंथ बताने के लिए अपने हिसाब से रिकॉर्ड बनाते होंगे, क्लियर। Thus there may have been possibility that the British overlooked certain issues which were relevant for the Indian masses. क्लियर। जो इंडियन मासेस, जो कई सारे इवेंट हुए थे, वो सारे चीज़ों को हटाकर उन्होंने अपनी पावर को शो करने के लिए अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे, क्लियर। द ब्रिटिश में हैव मॉडिफाइड दैम टू सूट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। जो उनकी पावर, जो उनकी स्ट्रेंथ को शूट करता होगा वही बनाते होंगे, क्लियर, वही लिखते होंगे। सो वन ought टू बी केयरफुल, इसलिए हमें केयरफुल रहना पड़ेगा while इंटरप्रेटिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड दैट बिलोंग टू द ब्रिटिश पीरियड। इसलिए ब्रिटिश पीरियड के जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होंगे उनको थॉरली देख करके मॉडर्न पीरियड कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट किया होगा, दैट मीन्स ओके। ये नहीं कि ब्रिटिश की सारी बातें मान ली, लिख लिया, बात ख़त्म, है ना। बाकी डॉक्यूमेंट्स को भी, ट्रैवल्स की भी और बाकी ट्रैवलर्स, बुक्स, मैगजीन, ये सब को देख करके क्या सच्चाई है, उस सच्चाई के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे रिकॉर्ड्स बनाए गए जो मॉडर्न पीरियड के थे, क्लियर, ना कि ब्रिटिश के हिसाब से, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। Books, newspaper and magazine. Books, newspaper and magazine. Now read out this. Keep your finger there. In the modern period, printing facility were easily accessible to the people. Printing facility थी at that time in modern period. As a result, the period witnessed mass production of book, newspaper and magazine. उस समय बुक, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन का काफ़ी चलन था, काफ़ी लोग प्रिंट आउट करते थे, अपने जितने भी थॉट्स थे वो सारे लिख देते थे ब्रिटिश के खिलाफ, या जो भी इवेंट्स होते थे उस इवेंट्स के बारे में बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन में हो जाता था लिखकर। हिस्टोरियन यूज दिस सोर्सेज, तो जो हमारे हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन मीन्स व्हाट, हु राइट्स हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में जो लिखते हैं वो हिस्टोरियंस ही हुए ना। तो हिस्टोरियंस ने ये सारे सोर्सेज को यूज़ किया बिकॉज उस समय प्रिंटिंग का अवेलेबिलिटी थी, प्रिंटिंग प्रेस था, ठीक है। हाँ, हिस्टोरियंस यूज दिस सोर्सेज टू स्टडी प्रिविलेंट आइडिया, थॉट्स एंड इवेंट ऑफ दैट पीरियड। तो लोगों के कई सारे थॉट्स, ये सारी चीज़ों को देखकर हिस्टोरियंस को काफ़ी हेल्प मिली, है ना, जब उन्होंने मॉडर्न पीरियड को कंस्ट्रक्ट किया। नेक्स्ट पैरा, हाउ एवर दीज सोर्सेज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ओनली ऑफ द रिच एजुकेटेड क्लास एंड द ब्रिटिश। अब जो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, वही पढ़ सकते थे ये सारे सोर्सेस। मैनी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी वेर स्टिल अनएजुकेटेड एट दैट टाइम। कई सारे लोग अनपढ़ हुआ करते थे, जो पढ़े लिखे होते थे वही इसकी इम्पोर्टेंस को पढ़ के समझ सकते थे, न्यूज़पेपर, मैगजीन को समझ सकते थे। लेकिन जो अनएजुकेटेड थे, जो दोज पीपल हु आर अनएजुकेटेड, हाउ दे नो अबाउट द इवेंट्स एंड सो मैनी थिंग्स, यस। स्टिल अनएजुकेटेड न्यूज़पेपर, मैगजीन रिफ्लेक्ट वॉट द ब्रिटिश एंड एजुकेटेड इंडियन थाट्स। इंडियंस के थॉट क्या थे, अनएजुकेटेड पीपल्स को इसका नॉलेज ही नहीं था बिकॉज दे आर इलिटरेट। द अनएजुकेटेड हैड नो यूज़ ऑफ मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। उनके लिए न्यूज़पेपर एंड मैगजीन का हैव नो यूज़।
Therefore, information about the uneducated class of society is non-existent and limited at best. इसलिए uneducated peoples के लिए ये सारी चीज़ों का कोई importance मीन्स क्या इम्पोर्टेंस है वो ये बात को जान ही नहीं सकते थे. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर. Beside written records, the architectural structure of the modern period of India are reflect of British influence. Official buildings such as Rashtrapati Bhavan, Parliament House and huge architectural structure like India Gate hold testimony of the British rule in India. तो ये जो सारी बिल्डिंग है चिल्ड्रन, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, है ना, ये कब कंस्ट्रक्ट किया गया? ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स. अकाउंट्स ऑफ ट्रैवल. आर्किटेक्चर समझ में आया चिल्ड्रन? आर्किटेक्चर में राष्ट्रपति भवन है, एंड अनदर इज our last topic is अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स. जो हमने भी पढ़ा अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स. ट्रैवल्स भी अकाउंट्स रखते थे, जो भी देखते थे वो लिख देते थे, है ना, उससे भी काफ़ी हेल्पफुल मिला हमें. ओके. सो सिमिलर टू द मेडिवल पीरियड मेनी पीपल, मेडिवल पीरियड में भी कई सारे पीपल हु कम टू सी आर इंडिया. ओके. सो इन मॉडर्न पीरियड ऑल्सो सिमिलरली द मेडिवल पीरियड मेनी पीपल विजिटेड आवर कंट्री. मेडिवल पीरियड में भी बहुत सारे पीपल्स विजिटेड आवर कंट्री ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड एज वेल एज इन मॉडर्न पीरियड ऑल्सो. दीज पीपल इंक्लूड ट्रैवलर्स. अब ये लोग कौन थे? ट्रैवलर्स, जो ट्रैवल किया करते थे. ट्रेडर्स, मिशनरियर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो मिशनरी लेकर आते थे. ओके. एंड ऑफिशियल्स ऑफ द ब्रिटिश, और ब्रिटिश के कई सारे ऑफिशियल्स भी आते थे. क्लियर. Their account describing the experience in the country serve as one of the major source to reconstruct the modern history. तो जो भी अकाउंट्स उन्होंने छोड़ा था, जो भी मैगजीन, जो भी बुक्स, जो भी डायरीज उनके थ्रू जो हमको मिली थी, दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू रिकन्स्ट्रक्ट अवर मॉडर्न हिस्ट्री. ओके. नेक्स्ट, while interpreting the historical sources, we must ensure not being misled by based information about the British. Though the history of the modern period in India is not difficult to reconstruct, how one use the sources to understand its important. तो पूरी तरीके से रिकॉर्ड ब्रिटिशर्स के यूज़ नहीं किए गए टू कंस्ट्रक्ट मॉडर्न हिस्ट्री. ओके. सम अनदर थिंग वी सी, वी ओवरलुक, एंड देन our historians can made our modern history as well. क्लियर चिल्ड्रन. यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. बाय बाय. हैव अ गुड डे.